یہ وہ ٹیکنالوجیز ہیں جو پاکستان میں ابھی تک انٹروڈیوس نہیں ہوئی لیکن ایک یوزفل ٹیکنالوجیز ہیں. یورپین کنٹریز آسٹریلیا وغیرہ یا امریکہ میں یہ انٹروڈیوس بھی ہو چکی ہیں اور انسٹال بھی ہو چکی ہیں, کیونکہ ان کے اندر ان کے سسٹم اور ہمارے سسٹم میں جو میجر فرق ہے وہ یہ کہ ہم کاسٹ سینسٹیو مارکیٹ ہیں. ہمیں میجر فیکٹر ہی یہ بات کرتا ہے کہ بھئی سستا سلوشن ہونا چاہیے, اس میں کوالٹی کو ہم دیکھتے بھی نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم نے یو پی ایس کی جب دور آیا اور یو پی ایس ہوا تو ہم نے لوکل میڈ یو پی ایس لگائے, اور لوکل میڈ یو پی ایس جو جب ہم میئرمنٹ کرتے ہیں اور کوالٹی کو دیکھتے ہیں تو پاور کوالٹی کے لحاظ سے سب سے زیادہ گندے لوکل میڈ یو پی ایس ہیں. لیکن ہم نے اپریشیٹ کیا ان کو, کیونکہ ہمیں پتا چلا کہ بھئی جو کوالٹی والے یو پی ایس ہیں وہ بہت مہنگے ہیں. حالانکہ ان کوالٹی والے یو پی ایس کا ایڈوانٹیج یہ ملا کہ ہماری بیٹریز کی لائف بڑھ گئی اور ہماری بیٹریز پراپرلی چارج ہونے لگ پڑی, لیکن ہم نے پھر بھی لوکل میڈ یو پی ایس کو پریفر کیا. یہی بات سولر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم چائنیز میڈ انورٹرز کی طرف جاتے ہیں, اور چائنیز میڈ انورٹر بھی لو کوالٹی کو بھی ہم پریفر کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ سستا سولوشن ہے, اور کمپیریزن کیا ہوتا ہے فلانا بندہ اتنے سستا سولوشن دے رہا ہے آپ کیوں مہنگا دے رہے, وہ مہنگے کا جواب نہیں پھر سم ٹائم ملتا. اینی نیو ٹیکنالوجیز انورٹرز کیا ہیں؟ تو آپ اگر دیکھو تو جو انہیریٹڈ پرابلم کل بھی ہم نے ڈسکس کیا سولر کے اندر وہ تھا شیڈنگ کا پرابلم. شیڈنگ کمپیریٹیولی ایکسیپٹیبل ہے کہ اگر شیڈنگ جو ہے سب پینلز پہ ایکول آ رہی ہے, یعنی کہ اسٹرنگ انورٹر ہے اور سب پینل پہ ایکول شیڈنگ آ رہی ہے تو شیڈنگ ایکسیپٹیبل ہے. لیکن اگر اسٹرنگ انورٹر ہے اور سب پینلز میں کچھ پینلز پہ کچھ اور شیڈنگ آ رہی ہے اور کچھ پہ کچھ اور, یعنی کہ آپ کی جو انسٹالیشن ہے وہ کچھ اس طرح سے ہو گئی ہے کہ کسی جگہ پہ شیڈ آ رہا ہے اور کسی جگہ پہ نہیں آ رہا, کیونکہ عموماً ہم نے اپنی چھتوں پہ بے تحاشا چیزیں ایسی بنائی ہوتی ہیں, مطلب جس طرح واٹر ٹینک آ گیا, ممٹی آ گئی, کوئی پول وغیرہ آ گئے, یا ان کی وجہ سے ہماری چھتوں میں کہیں نہ کہیں سایہ آ جاتا ہے. وہ جو سایہ ہے وہ سایہ اس کا پارشل, اس کو ہم پارشل شیڈ کہتے ہیں. پارشل شیڈ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایریا سولر پینلز کا شیڈڈ ہے اور کچھ نہیں ہے, یا اسٹرنگ میں کچھ پینل شیڈڈ ہیں اور کچھ نہیں ہے. تو جو پارشل شیڈنگ آتا ہے یہ کچھ چیزیں اگر آپ آبزرو کرو تو یہ دیکھو یہ ایک سسٹم لگا ہوا ہے اور اس سسٹم کے اندر آدھے پینل شیڈڈ ہیں اور آدھے نہیں ہیں. یہ آپ کو لگ رہا ہے یہ اوپن ایئر میں لگا ہوا ہے لیکن کلاؤڈ کی وجہ سے شیڈ آ رہا ہے, تو یہ بھی شیڈڈ پینلز میں کنسیڈر ہوتے ہیں. اسی طرح یہ ایک سسٹم لگا ہوا ہے, یہ بھی آپ دیکھو تو کلاؤڈز کی وجہ سے شیڈ آ رہا ہے لیکن یہ شیڈڈ پینلز کنسیڈر ہوتے ہیں. پھر کچھ ہم پارکنگ وغیرہ یا بلڈنگ انٹیگریٹڈ پی وی سسٹم میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کا شیڈ نارملی فلیٹ نہیں ہوتا اور ایک سرٹن اینگل پہ بھی نہیں بنا ہوتا, وہ ایک یو شیپ یا کرو شیپ میں بنا ہوتا ہے. اب وہ کرو شیپ جب بھی بنتا ہے تو اس کے اندر بھی بیسیکلی شیڈ آ جاتا ہے. اب وہ جو شیڈ ہے وہ بھی ڈسٹربنس کریٹ کرتا ہے اور پارشل شیڈ والے میکینزم میں چلا جاتا ہے. اسی طرح یہ دیکھو بلڈنگ انٹیگریٹڈ پی وی سسٹم پاکستان میں بھی کچھ جگہوں پہ انسٹال ہے کہ کھڑکیوں کے ساتھ پی وی پینل لگا دیے جائیں, تو وہ جو بلڈنگ انٹیگریٹڈ پی وی سسٹم ہے ان میں بھی آپ دیکھو کہ دونوں پینلز کا اینگل ہی ڈفرینٹ ہے. تو اینگل ڈفرینٹ ہے تو آٹومیٹیکلی سن کا سایہ جو ہے, سن کا جو انٹینسٹی ہے, جو ایریڈینس ویلیو ہے وہ تھوڑی ہو جائے گی اور اس میں ڈسٹربنس آئے گی. پھر ہم جب انسٹالیشن کرتے ہیں, جو نالائکی ہمارے انسٹالرز کی ہوتی ہے, جو وہ کیا کرتے ہیں کچھ پینلز کو ان کی لوکیشن کے اکارڈنگلی کوئی اور ٹلٹ اینگل دے دیتے ہیں اور کچھ لوکیشنز کو کوئی اور ٹلٹ اینگل دے دیتے ہیں. جب ان کا ٹلٹ اینگل بدلتا ہے تو آٹومیٹیکلی ان کی ایریڈینس ویلیو بھی بدل جاتی ہے, اور وہ جو ایریڈینس ویلیو بدلتی ہے اس کی وجہ سے آٹومیٹیکلی پارشل شیڈنگ آ گئی. جن پینلز کو کوئی اور ٹلٹ اینگل ہے کسی اور کو کوئی اور, تو وہ جو شیڈڈ میکانزم ہے اس کی ڈسٹربنس آپ کے سسٹم میں. یہ دیکھو یہ گھر میں لگا ہوا ہے قریب درخت یا پول ہے, اس کی وجہ سے شیڈ کریٹ ہو گیا, تو یہ ڈفرینٹ پارشل شیڈنگ والے میکانزم بن جاتا ہے. اب پارشل شیڈنگ کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ جو آئیڈیل کنڈیشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں یونیفارم کنڈیشن, یہ بلو لائن جو ہے یونیفارم کو انڈیکیٹ کر رہی ہے. تو یونیفارم کنڈیشن میں ایک پیک بنتی ہے اور ہمارا جو انورٹر ہے وہ آئیڈیل کیس میں اس پیک کو ڈیٹیکٹ بھی کر لیتا ہے اور اس پیک پہ اپنے سسٹم کو فورس کرتا ہے کہ چلے, اور ہمارا سسٹم ایفیکٹولی ایفیشنٹلی چل رہا ہوتا ہے اور میکسیمم پاور جنریٹ کر رہا ہوتا ہے. جب سسٹم میں پارشل شیڈنگ ہوتی ہے تو جتنے پینلز پہ ڈفرنٹ ایریڈینس آتی ہے اتنی پیک سسٹم میں بن جاتی ہے. دیکھا جائے تو ہمارے سسٹم میں ملٹیپل پیکس بن جاتی ہے. ان ملٹیپل پیکس میں ایک پیک یونیک پیک ہوتی ہے جسے ہم گلوبل میکسیما کہتے ہیں, اور باقی ساری پیکس کو لوکل میکسیما کہتے ہیں.
ग्लोबल मैक्सिमा क्यों कहते हैं? क्योंकि फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग लगी हुई है और उस स्ट्रिंग में टोटल 15 पैनल्स है और उन 15 पैनल्स में से लेट्स सपोज 3 या 4 डिफरेंट पैनल्स में डिफरेंट किस्म की इरेडियंस आ रही है, तो बाकी जो 11 पैनल है उन सब की इरेडियंस सेम होगी। तो जिन पैनल्स की इरेडियंस सेम होगी उनकी पावर डायरेक्टली ऐड हो जाएगी, और जिनकी इरेडियंस डिफरेंट डिफरेंट होगी उनकी इरेडियंस अलग अलग अपीयर होगी। तो जिनकी इरेडियंस ऐड हो जाएगी वो मैक्सिमम पीक अपीयर होना शुरू हो जाएगी। तो हमारे पीवी सिस्टम के अंदर एक ही ग्लोबल पीक अपीयर होती है और बाकी लोकल पीक्स अपीयर होती है। अब ये जो ग्लोबल पीक अपीयर होती है, अगर हमारा पीवी सिस्टम या इन्वर्टर हमारे सिस्टम को फोर्स करे कि इस ग्लोबल पीक की तरफ जाना है, तो हमारा सिस्टम एफिशिएंटली वर्क करेगा और मैक्सिमम पावर आपको सिस्टम में देगा। लेकिन अगर ये लोकल पीक की तरफ चला जाता है, ग्लोबल पीक की तरफ नहीं जाता, तो जो लोकल पीक की तरफ जितने भी सिस्टम जाते हैं तो वो एनर्जी लॉस करते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक ये इंडिकेट किया जाता है कि ये 30 से 70% पावर लॉस करते हैं। अगर हम इसका एनालिसिस करें, और मैंने कुछ जगहों पे सॉफ्टवेयर बेस्ड सिमुलेशन भी की हुई है और हार्डवेयर बेस्ड सिस्टम को देखा भी हुआ है, तो मुझे अंडरस्टैंडिंग होती है कि मैंने एक सर्टेन टाइम के लिए एक सिस्टम लगाया और उसको इंस्टॉल करके जब हमने उसके अंदर शेडिंग वाले पैटर्न्स बनाए, तो कुछ टाइम के लिए जब हमने कैलकुलेशन की तो जो सिस्टम जो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे बना हुआ था उसने 5000 वॉट एनर्जी प्रोड्यूस की, वॉट आवर एनर्जी प्रोड्यूस की, और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे नहीं बना हुआ था, जो प्रीवियस चाइनीज इन्वर्टर जो हम यूज करते हैं या लोकल इन्वर्टर जो यूज करते हैं उन पे बना हुआ था, उन्होंने 3000 वॉट प्रोड्यूस किया। आप कंपैरिजन देखो तो तकरीबन 40% का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 40% एनर्जी उसी जगह से हम हार्वेस्ट कर सकते थे जो नहीं की हमने। तो जो डिजाइनर होते हैं वो उनका मेजर पर्पस भी ये होता है कि उनको मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग का कोई मैकेनिज्म या कोई एल्गोरिथम लगाना चाहिए ताकि वो ट्रैक किया जाए, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक नहीं करते। आगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक पीवी सिस्टम था, उसका रेस्पॉन्स हमने देखा कि भाई अगर यूनिफॉर्म इरेडियंस, ये प्रैक्टिकल पीवी सिस्टम है, इसके अंदर कोई वर्चुअल सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम नहीं है। मैंने रिस्पॉन्स देखा कि अगर यूनिफॉर्म इरेडियंस पीवी सिस्टम को दिया जाए तो जो भी इन्वर्टर, चाहे चाइनीज है चाहे इंटरनेशनल कोई और कंपनी के इन्वर्टर्स हैं, वो सारे बिल्कुल एग्जैक्ट वर्क करते हैं, कोई मसला नहीं आता। हमने ये इन्फिनिक्स, ग्रोवर्ड, सन ग्रो, ये जो कंपनीज कल मैंने आपको बताई, ये मेजर सारी कंपनीज में यही रिस्पॉन्स आता है और ये बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है। ये है यूनिफॉर्म इरेडियंस कंडीशन का। और जब इसी सिस्टम पे पार्शियल शेडिंग क्रिएट की गई, तो जो पार्शियल शेडिंग का फिनोमिना है, तो इसने क्या किया, इसी सिस्टम ने जो लोकल मैक्सिमा है उसको ट्रैक किया गया, यानी कि जो नियरेस्ट पीक थी, जो सबसे पहली पीक थी, उसे ट्रैक किया। उसने आगे जाने की जहमत भी नहीं की। आगे जाने की जहमत करता तो शायद मैक्सिमम पीक कहीं और ट्रैक कर जाता। तो ये बेसिक फर्क है। और जो प्रॉब्लम है हमारे इन्वर्टर्स में वो ये है कि उनके अंदर पार्शियल शेडिंग का कोई फिनोमिना या कोई सिस्टम इंटीग्रेट ही नहीं हुआ। और पार्शियल शेडिंग का कोई फिनोमिना या कोई चीज जब इंटीग्रेट नहीं हुई तो उसके अंदर डिस्टर्बेंस आती है, और डिस्टर्बेंस ये आती है कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो 30% से लेकर 70% पावर लॉस आ जाता है अगर पार्शियल शेडिंग आप डिटेक्ट नहीं करते। अब आप देखो तो कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्होंने पार्शियल शेडिंग को रिजॉल्व करने के लिए डिफरेंट किस्म के मैकेनिज्म बनाए हुए हैं। जो दुनिया के अंदर जो सबसे फेमस कंपनी, उसे एसएमए के नाम से जाना जाता है, पाकिस्तान के अंदर भी एसएमए है। तो एसएमए ने इंट्रोड्यूस किया है एक सॉफ्टवेयर, उसका नाम है शेड फिक्स। अब ये सॉफ्टवेयर बेसिकली बिल्ट इन है एसएमए के इन्वर्टर्स में, जो लेटेस्ट इन्वर्टर आप लेते हो उनके ऊपर लिखा होता है कि ये इन बिल्ट शेड फिक्स के नाम से एक एल्गोरिथम इन्होंने इंप्लीमेंट किया हुआ। और शेड फिक्स का काम क्या है कि अगर हमारे सिस्टम के अंदर कोई शेड आ गया या पार्शली शेडेड हो गया, तो ये क्या करेगा, ये एल्गोरिथम चलेगा और मैक्सिमम पावर पॉइंट की ट्रैकिंग करेगा। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो एल्गोरिथम्स होते हैं कंपैरेटिवली स्लो होते हैं। जब ये कंपैरेटिवली स्लो होते हैं तो इनके अंदर क्या होता है कि जितनी देर तक ये ट्रैकिंग करते हैं उतनी देर तक पावर लॉस होता है। तो ये, लेकिन एनीवेज कंपैरिजन किया जाए, और मैंने स्टडीज पढ़ी, एनआरईएल ने भी एक रिपोर्ट जनरेट की और उस रिपोर्ट को भी मैंने पढ़ा, तो हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि भाई एसएमए का जो इन्वर्टर है ये अच्छा परफॉर्म करता है इवन अंडर पार्शियल शेडिंग और इवन इन यूनिफॉर्म कंडीशंस, यानी कि इसकी जो पावर ट्रैकिंग कैपेबिलिटी है वो ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू अदर इन्वर्टर्स। लेकिन इससे बेहतर सोल्यूशन भी अवेलेबल है, क्योंकि एसएमए जिस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता है वो स्ट्रिंग इन्वर्टर है। और स्ट्रिंग इन्वर्टर एक बाय डिफॉल्ट एक ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें पार्शियल शेडिंग एक बेसिक फिनोमिना है और जो वो करते ही करेगा, और उसकी वजह से कोई बहुत इफेक्टिव चेंज नहीं आता अनलेस आपके पास प्रॉपर
ऑप्टिमाइजेशन मैकेनिज्म हो के बाईपास डायोड को किस तरीके से अवॉइड किया जाए, हॉटस्पॉट या बाकी मैकेनिज्म को अवॉइड किया जाए। तो ये इसी का जो दूसरा वर्जन बनता है, इसको कहते हैं मॉड्यूलर बेस्ड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। मॉड्यूलर बेस्ड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है कि आप देखो कि हर इन्वर्टर के पीछे पावर इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्स लगे हुए हैं जिनको हम पावर ऑप्टिमाइजर कहते हैं। पावर ऑप्टिमाइजर क्या है कि जो इन बिल्ड सोलर इन्वर्टर के अंदर ऑप्टिमाइजर्स लगे होते हैं। सोलर इन्वर्टर के अंदर डीसी टू डीसी कन्वर्टर लगा होता था, वो डीसी टू डीसी कन्वर्टर इंडिविजुअली मॉड्यूलर लेवल पे चला गया। जब ये मॉड्यूलर लेवल पे चला गया तो हर मॉड्यूल की वैल्यू को वो मेजर करने लगा पड़ा। अब ये तीन काम करता है। तीन काम क्या है? नंबर वन, ये करता है रैपिड शटडाउन। इन केस ऑफ फायर एक कोड बनाया हुआ है, एक इंटरनेशनल पॉलिसी बनाई गई है। वो पॉलिसी क्या है? नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड के नाम से, यूरोपियन भी है और यूएस की भी है। और ये पॉलिसी क्या है कि भाई इन एनी केस अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है नीचे वाली साइड पे, इन्वर्टर वाली साइड पे, तो जो ऊपर वाला मैकेनिज्म है वो इंडिविजुअल मॉड्यूलर लेवल पे ये कट ऑफ हो जाए, ये कट डाउन हो जाए, यानी कि जो मॉड्यूल्स की आउटपुट वोल्टेज है वो नीचे ना आए, क्योंकि धूप तो निकल रही है और धूप निकलने पे उसने बिजली भी प्रोड्यूस करनी है। अगर वो ही पावर नीचे आएगी तो कहीं ना कहीं उस हैजर्डस एनवायरनमेंट में ट्रिगर ज्यादा कर जाएगी। तो ये एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान में कि भाई पाकिस्तान में तो मॉड्यूलर लेवल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या इस तरह का कोई कोड या पॉलिसी नहीं है, तो हम लोग कुछ इस चीज को इम्प्लीमेंट भी नहीं करते। लेकिन इंटरनेशनली क्या है कि उन्होंने मॉड्यूल्स के ऊपर कोई पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि भाई इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी तो आपके पास इतना कंट्रोल होना चाहिए कि आपका जो मॉड्यूल है, एक मॉड्यूल इंडिपेंडेंटली आइसोलेट हो जाए। कभी आप ऑब्जर्व करो कि जो डीसी वोल्टेज है कंपेयर टू एसी वोल्टेज बड़ा डेंजरस है, कंपैरेटिवली ज्यादा डेंजरस है। लेकिन अगर हम एक पैनल के वोल्टेज को देखें तो वो 40 वोल्ट बनता है, लेकिन जब हम एक स्ट्रिंग बनाते हैं तो नॉर्मली ये स्ट्रिंग के वोल्टेजेस जब हम कैलकुलेट करते हैं तो मॉडर्न पैनल जो 540 वॉट के, जो 41 42 वॉट के करीब वोल्ट के करीब देते हैं, जब वो स्ट्रिंग बनती है और उसमें 12 या 13 पैनल्स एक सीरीज में लगते हैं तो जो वोल्टेज बनता है वो 600 या 700 के करीब वोल्टेज बन जाता है। और ये 700 वोल्टेज कंपैरेटिवली बहुत डेंजरस है एज कम्पेयर टू आपको कि भाई एसी का 220 या 240। तो वो प्रोटेक्शन क्या है कि नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड क्या है कि वो कहता है कि भाई मॉड्यूलर लेवल पे आपकी जो है वो हो जाए, क्या नाम है, प्रोटेक्शन हो जाए। और मॉड्यूलर लेवल पे प्रोटेक्शन ये है कि आप इन्वर्टर को, अपने मॉड्यूल्स को बंद कर दो। तो ये पहली एडवांटेज मिलता है इसका कि भाई आपके पास मॉड्यूलर लेवल सेफ्टी आ जाती है। दूसरा एडवांटेज ये मिलता है कि भाई आप देखो तो इसके अंदर मॉनिटरिंग आ जाती है, क्योंकि हर मॉड्यूल पे एक वो लगा हुआ है, पावर ऑप्टिमाइजर लगा है, तो वो करंट को भी मेजर कर रहा है, वोल्टेज को भी मेजर कर रहा है। अगर हम इसके अंदर सेंसर लगा दें तो टेम्परेचर को भी ये मेजर कर लेगा। तो ये जो ये इंफॉर्मेशन आपको देगा, या अगर आप इसके पीसी पे भी देखो तो आपको नजर आएगा हर मॉड्यूल की जो जितनी वो पावर जनरेट कर रहा है उतनी पावर इधर अपीयर होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, एसएमए ये चीज नहीं प्रोड्यूस करता, ये एक टाइगो के नाम से कंपनी है, TIGO के नाम से कंपनी है, वो प्रोड्यूस करती है। और ये एसएमए के साथ वो इनबिल्ड उसकी अटैचमेंट की जा सकती है। एनीवे जो दूसरा एडवांटेज मिलता है उसका एडवांटेज होता है कि उसकी मॉनिटरिंग हो जाती है, यानी कि मॉड्यूलर लेवल पे मॉनिटरिंग पॉसिबल हो जाती है। अच्छा, तीसरा एडवांटेज ये मिलता है कि हम ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, यानी कि जो हमारे हर मॉड्यूल्स पे जो डिफरेंट पावर रेटिंग आ रही थी, या क्या नाम है, हमारे हर मॉड्यूल पे जो प्रॉब्लम आ रही थी कि भाई जो हर मॉड्यूल जो है वो उसमें पार्सल शेडिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, उस पार्सल शेडिंग की प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये तीनों मसले इधर रिजॉल्व हो सकते हैं कि अगर हम हर मॉड्यूल को ऑप्टिमम वे में चलाना शुरू करें तो ये पार्शियल शेडिंग की प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो सकती है। तो ये एक मैकेनिज्म है पावर ऑप्टिमाइजर का। ये दुनिया के अंदर यूज होता है, पाकिस्तान के अंदर नहीं होता क्योंकि महंगा बड़ा पड़ जाता है। अब एक कंपनी आती है, उसका नाम है सोलर एज। सोलर एज कंपनी कहती है भाई मैं आपको प्रॉपर कंप्लीट सोल्यूशन दूंगा। ये जो आप मैंने एसएमए का सोल्यूशन दिया वो शेड फिक्स के नाम से था, फिर एसएमए के साथ या किसी भी इन्वर्टर के साथ अगर आपने ऑप्टिमाइजर लगाना है तो टाइगो के नाम से ऑप्टिमाइजर अवेलेबल है। वो लगता है पूरी दुनिया के अंदर डिफरेंट कंपनी लगाती है, लेकिन ये बहुत आइडियल या रिलायबल सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि डिफरेंट ब्रांड्स की कंपनी इन्वर्टर्स या पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आप अलग अलग यूज कर रहे होते हैं। इन्वर्टर किसी और कंपनी का और ऑप्टिमाइजर किसी और कंपनी का, तो इनकी कंपैटिबिलिटी इश्यूज भी आते हैं और मेजोरिटी केसेस में बर्न आउट भी हो जाता है।
तो उसकी निस्बत ये एक आता है कंप्लीट सोल्यूशन सोलर एज के नाम से। अगर हम अमेरिकन कंपनीज को देखें और हम ये चीज को एनालाइज करें कि भाई पूरी दुनिया के अंदर जो टॉप रैंक कंपनी जो सबसे ज्यादा बिजनेस कर रही है, स्पेसिफिकली हम कहेंगे अमेरिका में सबसे ज्यादा बिजनेस कर रही है, वो सोलर एज है। सोलर एज एक इंडिविजुअल सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। वो कहती है भाई एनईसी यानी कि नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड की 100% पॉलिसी को obey कर रही है, और मॉड्यूलर लेवल की पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वो पहले दिन ही इंट्रोड्यूस कराती है, और उसके साथ जो इन्वर्टर है उसके अंदर इन्वर्टर वाला फिनोमिना होता है, कन्वर्टर वाला फिनोमिना नहीं होता, यानी कि 100% पार्शियल शेडिंग को वो रिजॉल्व करेगी, पार्शियल शेडिंग का मसला हल कर देगी। अब ये क्या है कि आप अगर इनके स्ट्रक्चर्स को देखो आपको नजर आता है कि ये मॉड्यूलर लेवल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रक्चर्स हैं, ये जो स्ट्रक्चर ये आपको नजर आ रहे हैं, आप देखो सिंपल पैनल की दोनों आउटपुट्स जो है इस क्या नाम है ऑप्टिमाइजर में गई, और ऑप्टिमाइजर आपस में सीरीज में लग रहा है और ये कनेक्शन आप क्रिएट किया जा रहा है। तो ये बड़ी यूनिक किस्म की कंपोजिशन बनती है और ये एक अच्छा सोल्यूशन बन जाता है। डीसी टू डीसी कन्वर्टर मॉड्यूलर लेवल पे चला गया है, तो ये अच्छी एक ऑप्शन बन जाती है। और मैंने इसके आउटपुट भी देखे, कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर है एसएमए के निस्बत, लेकिन कॉस्टली है कंपैरेटिवली। अगर हम कॉस्ट के लिहाज से देखें तो ये कॉस्टली बनता है। अच्छा, हवावे क्योंकि चाइनीज कंपनी है, ये इन्होंने पीछे थोड़ी रहना है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई आपको स्ट्रिंग इन्वर्टर चाहिए, हम स्ट्रिंग इन्वर्टर भी देंगे, ऑप्टिमाइजर चाहिए तो हम ऑप्टिमाइजर भी देंगे। और हवावे क्योंकि पाकिस्तान में लॉन्च भी हो चुकी हुई है, तो ये भी ऑप्टिमाइजर बेस्ड सोल्यूशन देते हैं। इनके कुछ इन्वर्टर्स ऐसे हैं जो 100% ऑप्टिमाइजर बेस्ड चलते हैं, और कुछ हैं जो ऑप्टिमाइजर का सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज आप अगर सोलर एज को देखो तो सोलर एज क्या करता है, वो कहता है कि भाई डीसी टू डीसी कन्वर्जन ऊपर हो गई है तो हमें कोई जरूरत नहीं, वो नीचे नहीं करेगी। लेकिन बाकी इसके अलावा ये जो टीगो वाला है, क्योंकि ये अदर ब्रांड है, इन्वर्टर ने अपनी डीसी टू डीसी कन्वर्जन की तो इसने अपनी डीसी टू डीसी कन्वर्जन की, ऑटोमेटिकली ये जो है इतना एफिशिएंट नहीं होगा जितना सोलर एज होगा। इसी तरह हुआवे भी जो बेसिक इन्वर्टर बना रहा है वो डीसी टू डीसी कन्वर्जन अपने इन्वर्टर में भी लेके आ रहा है, ऑप्टिमाइजर भी यूज कर रहा है। वो कह रहा है कि भाई अगर आपके किसी पैनल के अंदर शेड आ गया है, शेड आता है बार बार आता है, तो आप उस पैनल के साथ ऑप्टिमाइजर लगा लो, बाकी उनके साथ ना लगाओ। सस्ता सोल्यूशन बन गया कि सारे पैनल्स के साथ लगाने की जरूरत ही नहीं है, जिन जिन पैनल्स पे आपको शेड आता है उसके साथ ऑप्टिमाइजर लगा लो ताकि वो मैक्सिमम पावर आपके सिस्टम में इंटीग्रेट कर दे। तो ये बेहतर सोल्यूशन एक चाइनीज अप्रोच के लिहाज से बेहतरीन सोल्यूशन है कि भाई सोलर एज का भी सोल्यूशन मिल गया तो एसएमए का भी सोल्यूशन मिल गया, तो ये कहते हैं कि भाई इस तरह एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। एनीवेज, ये मैंने कॉस्टली इन सबको मैंने ईमेल की थी कॉस्ट के लिहाज से कि भाई कितनी कॉस्ट आ रही है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस रहा सॉइस हवावे के, किसी और ने मुझे रिप्लाई नहीं किया, और हवावे ने जो रिप्लाई किया वो अप्रोक्सीमेटली 13,000 पर ये मॉड्यूलर लेवल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये इन्होंने रिप्लाई किया। और मेरे हिसाब से ये बड़ा एक्सपेंसिव है, जिधर 20-21 हज़ार रुपए का आप पैनल खरीद रहे हो और उसे 13,000 का ये ऑप्टिमाइजर खरीदोगे तो ये बड़ा महंगा पड़ जाएगा। एनीवेज, ये सोल्यूशन अवेलेबल है। अच्छा, इससे बड़ा सोल्यूशन एक कुछ कंपनीज हैं, इनमें एक इनफेस के नाम से आती है, एक सोलर एज के नाम से आती है। ये दो कंपनीज हैं, इन्होंने कहा भाई बजाय इसके के मॉड्यूलर लेवल पावर ऑप्टिमाइजर लगाएं और नीचे इन्वर्टर लगाएं, हम क्यों ना मॉड्यूलर लेवल माइक्रो इन्वर्टर यूज कर लेते हैं। और माइक्रो इन्वर्टर सिंपल 400 वाट का, 500 वाट का या 600 वाट का पावर इन्वर्टर यूज करके मॉड्यूल पे लगा दी, यानी कि बजाय इसके कि एक पीछे एंड पे एक सेंट्रलाइज इन्वर्टर लगाया जाए, इन्वर्टर को ही डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया और ये मॉड्यूलर लेवल जो है माइक्रो इन्वर्टर लगा दी। और ये सबसे बेहतर टोपोलॉजी है एनर्जी प्रोडक्शन के लिहाज से। और अगर आप एनर्जी प्रोडक्शन के लिहाज से देखो तो सबसे ज्यादा एनर्जी ये वाला सिस्टम प्रोड्यूस करता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। इवन अमेरिकन जो है इस बात पे आते हैं कि यार अगर बहुत ही ऐसा सिचुएशन बन गया है कि भाई शेड अवॉइड ही नहीं किया जा सकता तो फिर माइक्रो इन्वर्टर पे जाना, अदरवाइज इन माइक्रो इन्वर्टर में। यानी कि अमेरिकन जैसी कंपनी जो कॉस्ट सेंसिटिव नहीं है वो भी इस बात पे आ गए हैं कि भाई ये जो इन फेज या सोलर एज वाले माइक्रो इन्वर्टर हैं ये बहुत एक्सपेंसिव है। तो ये बहुत ज्यादा लोग इसको नहीं प्रेफर करते क्योंकि एक्सपेंसिव भी बहुत चले जाते हैं।